आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम, और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम, और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास तो है यही कि तू है यही, हम हैं जहाँ वही, बरसे महिमा तेरी। यीशु तू है महान, यीशु तू है। Praise the Lord and welcome to Promised Life Anugerah. We are so incredibly glad that you could join us this morning for our online service. Before we get into the rest of the service with praise and worship, I'd like to read with you Isaiah chapter 41 verse 10. It says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." The Lord is speaking so incredibly in our lives with the scripture, and I find so much solace and encouragement within this one verse. Really, the last part of the verse being, "I will uphold you with my righteous right hand." We're not going through this journey on our own. We are being uplifted. We are being held. We are being carried by our Father in heaven. And so with that, let us pray. Dear Heavenly Father, I just humbly bow down before thy throne of grace. I thank you for the lives of the people that you have instilled around us. Thank you for our congregation. Thank you for the community that we have around us. Lord Jesus, we are so incredibly grateful that even though we aren't able to meet in person, we have the technology and the means to have church online. I just commit our congregation, every single family, into your hands. We thank you for blessing us. We thank you for keeping us healthy, safe, and whole. In everything that we do this week, in everything that we are, may we continue to praise and glorify your name. In Jesus' mighty and precious name I pray. Amen. मैं आपके यहूदी परवंदी हूँ।
Praise the Lord and welcome to Promise Life Anugerah. Thank you for joining us for our online service. Here are the notices for this week. If the altar's where you need. As you all know, the government extended COVID-19 level 2.5 restrictions in Auckland until Wednesday, September 16th. We will know tomorrow whether these restrictions will continue. For Auckland, this still means no gathering of more than 10 people. Hence, our church service will continue online until this restriction is lifted. We ask you all to stay safe, remain within your bubbles as much as you can, wear face masks where possible, and continue to pray for our country and each other. The government has mandated that all businesses in public buildings should display the COVID Tracer QR code. We now have the QR code displayed around our church. If you have downloaded the app, please record your visit using the app every time you are in church. If you don't have the app, please keep a record of your visit to church. A reminder that daylight savings will start from Sunday, September 27th. Clocks go forward 1 hour.
मसीह की जय। प्यारे दोस्तों, सभी को आज हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज हम जानते हैं कि ना प्रभु हमारे साथ है। धर्मशास्त्र कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उनके बीच में हूँ। आज हम जानते हैं कि हम सारे लोग प्रॉमिस लाइफ अनुग्रह के मेंबर हम एकत्रित हुए हैं आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और भी जितने लोग हमारे दोस्त रिश्तेदार जहाँ कहीं भी हो आज दुनिया भर में, आप लोग सभी को यीशु मसीह के नाम से हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि ना आज एतवार है यहाँ पर न्यूजीलैंड में, और हम लोग परमेश्वर के वचन हर सप्ताह की तरह आज भी सुनते हैं, सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम पिछले सप्ताह फादर्स डे के विषय में कुछ सुने थे। हमारे चर्च के कुछ नौजवान वो लोग फादर्स डे के बारे में बातचीत किया। आज फिर हम फादर्स के बारे में कुछ चर्चा जरूर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और लीजिए इस समय हम सब प्रार्थना में जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए, और उससे आशीष को मांगे। लेट्स ऑल प्रे। Father God, we thank you for your goodness, for your mercy, O Lord। प्रभु धन्यवाद, आपकी जय जयकार करते हो, आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। धन्य कहते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो पिता आज इस शुभ अवसर तूने दिया मेरे परमेश्वर, जिसमें होकर तेरी नाम तेरी काम की हम बड़ाई कर सकें, और परमेश्वर आपके चर्चा हम कर सकें आपके वचनों के द्वारा। प्रभु जी आज तू बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, सुनाने वाले के साथ और सुनने वाले के भी साथ हो। Father God, I welcome you, Holy Spirit, come and teach us this morning, and Lord Jesus, that we may do your will and your purpose, and we may learn something from your living word. Father, bless us with your precious word. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. तो आज हम जानते हैं कि ना परमेश्वर के वचन जो है हमारे लिए रोटी है, परमेश्वर के वचन जो है हमारे लिए पानी है। प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है वो हमारे लिए ताकत है और हमारे लिए बुद्धि ज्ञान समझ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे जो शीर्षक है आज है फादर, और उसके विषय में आज हम सुनेंगे या देखेंगे वचन क्या हमसे कहता है। क्यों ना इस समय हम लोग बाइबल को खोलेंगे। लेट्स टर्न टू आवर बाइबल्स टू इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 and 2। इफिशियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 और 2 को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। या 3 तक भी देखेंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। राइट, विल रीड फ्रॉम वर्स 1 2 3 and 4 maybe। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ते हैं। पहले कहता है, ये बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 2 कहता है, अपनी माता और पिता का आदर कर, या पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। वर्स 3 कहता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों जीवित रहे, और ये बच्चे वाले अपने बच्चों को सिर ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में कहता है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, फॉर दिस इज राइट। ऑनर योर father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on this earth। Praise the Lord। Hallelujah। तो इस तरह से हम देखता है कि ना परमेश्वर के वचन जो है आज हमसे कहता है कि हम अपने जो माता पिता उसको आदर करें। ये वर्स 2 में कहता है कि अपनी राइट, वर्स 2 में कहता है, इट सेज ऑनर योर फादर एंड मदर। प्रेज द लॉर्ड। अपनी पिता और अपनी माँ की आदर हम करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम देखता है कि जो पुरुष है, जो मेल मेंबर हमारे फैमिली में है, वो हमारे पिता है, और वो ज़रूरी बात है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो दैट और टू सी दैट और male member in the family who is leading the family or who is the main person in the family, breadwinner maybe। तो हम लोग देखता है कि परमेश्वर ने पिता को आदर दिया है, और हम जानते हैं कि उन्होंने अपने नाम को पिता, जो शारीरिक पिता, उससे जुड़ा है। और जब बताते यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया, उन्हें कहा कि ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम जानते हैं कि धरती में हमारे जो बायोलॉजिकल फादर है, हमारे जो पिता जिन्होंने हमें पैदा किया है, या कुछ लोग अपने पिता को शायद जानते नहीं होंगे, जिसको कोई उनको पालन पोषण किया होगा ज़रूर। और हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में और भी फादर फिगर्स है जो पिता के दर्जा रखते हैं।
and we need to honor them when God is God gave God connected his name with the with earthly father. और हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आदम को शुरुआत में बनाया अपने रूप अपने स्वरूप में. Adam was the first father, or physical father was created by God. Praise the Lord, hallelujah. तो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ माताओं के बारे में कहा गया है. There are a lot of poems or songs been written about the mother, but very little been said about the fathers. बहुत कुछ कम पिता के विषय में कहा गया है. और हम जानते हैं किसी कविकार ने लिखा है, पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं. तो इस तरह से हम देखता है कि पिता एक बहुत ज़रूरी भूमिका अदा करता है हमारे ज़िंदगी में. और हम जानते हैं कि पिता को हम लोग उस दर्जा देना ज़रूरी है और हमें रिकॉग्नाइज करना है. वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर फादर हु इज़ ए वेरी स्पेशल फिगर इन आवर फैमिलीज. प्रेज द लॉर्ड. हम लोग देखता है कि ना बहनों के लिए अगर समस्या है, सिस्टर्स है प्रॉब्लम्स, दे कैन गो टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस. वो लोग कई ये जगह पर जा सकते हैं, जैसे वुमेंस क्राइसिस सेंटर है और वुमेंस लिबरेशन है, वुमेंस इक्वल राइट्स. और पुरुष के लिए क्या है, व्हाट इज फॉर मैन. Women can go to different institutions and go get help, but we see that many men end up in prisons. और हम जानते हैं कि आज पुरुष के जो नंबर है बहुत बढ़ता जाता है प्रिजन में, and they are building prisons more and more. और हम लोग देखता है कि and men are getting into many problems. They're getting into drug addiction, and there are high suicide rate. हम लोग देखता है कि पुरुषों में. और and many men they lose their heart, and because of that they end up in prisons and they get into problems. हम लोग देखता है कि once upon a time एक समय के बाद ऐसा था कि लोग जो पुरुष लोग हैं या पिता लोग हैं वो लोग मेहनत करने वाले थे, and they used to work on the farms and they used to build bridges and roads, and they were breadwinners, and they used to do hard work. And to my understanding, in the family breakdown is because of the absence of the fathers. हम जानते हैं कि जब परिवार टूटता है क्योंकि ये पिता के गैर हाजिरी के कारण से. परिवार में पिता का दर्जा लेना बहुत ज़रूरत है, या पिता को हम लोग वो दर्जा दें, या पिता नहीं रहने के कारण से परिवार में समस्या आता है. और आज हम जानते हैं कि पिताओं को मदद की ज़रूरत है. The fathers, they need help, they need our prayers. Praise the Lord. So we'll see some of the characteristics of the father. आज हम कुछ चरित्र को देखेंगे पिता का. So who is the father? Let us define fatherhood. हम लोग आज समय देखेंगे पिता क्या है. और जो जो फादर को हम लोग कहते हैं, तो there is about 6 words in father, FATHER. तो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, आज देखेंगे. Okay, father, the first word is F, and F stands for foundation. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी सान कर, मिट्टी गूंज कर, मिट्टी से बनाया है और भूमि से बनाया है. और हम जानते हैं कि हर एक जो बिल्डिंग है वो खड़ा होता है भूमि पर. एंड every building is erected on the ground, and it needs to be foundation need to be laid. और हम जानते हैं कि नींव डाला जाता है, और वो नींव जो है वो घर का जो पिता है वो फाउंडेशन है, वो नींव है. और हम देखता है कि building is erected, and not many people, or we don't really recognize how the foundation looks like, and we don't we want to when we see the building, we'll see a structure, and we see the shape of the building, we see the paint of the building, we see the design of the building. हम जानते हैं अगर एक बिल्डिंग को हम लोग देखते हैं और उसके हम लोग नक्शा को देखते हैं, उसके पेंट को देखते हैं किस तरह से बना है, मगर हम जानते हैं बहुत कम लोग हैं जो
जो उसके फाउंडेशन पर नज़र डालते हैं। तो इस तरह से हम देखता है कि जो फादर फिगर है वो है ना एक फाउंडेशन है, वो नीचे रहता है। और हम देखता है कि किसी ने कहा कि हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड सम से दैट वाइफ इज द नेक, और जिधर मांगे उधर घुमा सकती है। मगर हम जानते हैं कि फाउंडेशन ये बिल्डिंग को होल्ड करता है, परिवार को रोक के रखता है। एंड गुड फादर आर द रॉक of the family. Praise the Lord. Buildings, the Bible says that the building that is built on the rock will stand all types of problems that hits the building. तो हम जानते हैं कि चट्टान पर जो घर बना है वो मजबूती से खड़ा होगा, कोई भी तरह के आक्रमण उस पर आएगा, अलकोरें आएंगी, हवा चलेगा, तूफान, मगर वो डट कर खड़ा होगा। इसी तरह से एक पिता का जिंदगी है, एक घर का पिता जो मजबूती से उसको खड़ा रहना है। और हम देखता है कि शुरुआत में आदम और अव्वा जो बगीचे में थे, और हम जानते हैं कि अव्वा ने परीक्षा में पड़ी, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो फल को तोड़ी और उसको खाया, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। और जिस समय आदम ने फल को खाया, और हम जानते हैं कि जो पिता दुनिया के सब पिताओं का पिता है, और जैसे उन्होंने उस फल को खाया, और परमेश्वर ने कहा कि पाप जगत में आया है, थ्रू वन मैन सिन केम, व्हेन ही सिन्ड, एक इंसान के द्वारा पाप आया। जब तक वो इंसान ना जो आदमी था, जो पिता था, उन्होंने फल को खाया, और हम जानते हैं कि दुनिया में पाप आ गई। आज many men or fathers are on Satan's top hit list, और हम जानते हैं कि आज शैतान का सबसे लिस्ट में सबसे ऊपर नाम पिताओं का है, और उसी के ऊपर वो अटैक करने के लिए तैनात रहता है। और हम जानते हैं कि हमें सतर्क रहना है, वी नीड टू बी केयरफुल एंड वी नीड टू सीक द लॉर्ड, एंड दैट्स व्हाई बाइबल सेज मैन आउट टू प्रे एंड विदाउट सीजिंग, पुरुष को प्रार्थना में लगा रहना है। लेट अस कीप आवर मैन इन आवर प्रेयर्स। हम लोग की ज़रूरत है, जितने पिता हैं उनके लिए हम दुआ करें, उनको परमेश्वर के सामने हर समय उठाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राइट, दूसरा जो शब्द है, सेकंड वर्ड इज एज, और ये है एक जो पिता है, अ गुड फादर विल गिव एडवाइस और ही विल बी एडवोकेट टू हिज चिल्ड्रन, हिज फैमिली। हम जानते हैं कि एक अच्छा पिता जो अपने बच्चों को एक अच्छा सलाह देने वाला है। तो हम देखता है कि पिता जो है वो इंसान है, सब सवालों का जवाब उसके पास नहीं होता है, एंड maybe is not right all the time, but at least he is tried to answer the questions when children have. और हम जानते हैं कि मेरा पिता भी था, जब जब हमारे पास सवाल थे उसके पास हम लेकर जाते रहे, और वो अपने तरीके से या अपना जो बुद्धि ज्ञान समझ से हर एक जो सलाह है देता रहा। और हम जानते हैं कि हम आज grandfather हो गए हैं, right? I am a grandfather now, but still children come to me and they call me and ask advice for different different reasons. कई कारण से हमारे बच्चे जो है हमें कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं या बातचीत करते हैं कि ये बात हम कैसे हल करें, और ये समस्या है, इसको ना हमारी एडवाइस को चाहते हैं। भले बचड़ते वो लोग शायद उसको सुनकर उस तरह से नहीं अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, मगर फिर भी उनको कहीं ना कहीं पर हम सलाह देते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं उनके जवाब मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम जानते हैं कि जब मैं शुरुआत में प्राइमरी स्कूल जाता रहा, तो मेरे जो आजा था उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो टीचर को उंगली दिखाना, राइट?
एक उंगली दिखाना, अगर ना टॉयलेट जाना है तो 2 उंगली दिखाना। तो हम देखता है यहाँ पर कि ना हम हिंदी बोल नहीं सकते थे, बहुत कम हिंदी जानते थे उस समय। तमिल हमारे घर पर होता था, तमिल भाषा। तो हम देखता है कि हमारे आजा ने ये बात को सिखाया, अगर तुम ना बाहर जाना है तो टीचर को 1 उंगली दिखाए ना, अगर टॉयलेट करना है तो 2 उंगली दिखाए, तो वो समझ जाएगी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमें ना एडवाइस की ज़रूरत है, हमें सलाह की ज़रूरत है। हमारे पिता भी हमें ना अच्छा सलाह देता रहा। एक समय के बाद हम लोग शादी में गए और रात के समय था, मैं शायद तब होगा 9 साल का होगा, और रास्ते में उधर से हम लोग शादी से वापस आ रहे थे। और तो मेरे पिता ने मेरे हाथ पकड़ कर नदी क्रॉस किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम भी जो एक हमारे जो वहाँ पे शादी में एक कव्वाली होता था, और ये नौजवान हमारे गांव का था, वो एक गाना गा रहा था। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस तरह से, ये जो कव्वाल है अमीचंद, उसी तरह से तुम भी कुछ अपना नाम कमाओ। और you know, he said you have to do something in your life, right? You know, you have to use your life, and you have to see that you do something, contribute to the world. तुम्हें ज़रूरत है दुनिया में कुछ करें। तो हमने देखता है कि उन्होंने हमारे अंदर में एक बात को डाला कि हमें कुछ करना है दुनिया में, और हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ उन्नति करना है, और दुनिया में हमें कंट्रीब्यूशन देना है। अब जानते हैं कि मैं कव्वाल नहीं बन सका, मगर जानते हैं कि पादरी बन गया अंत में। एनीवे, और मैंने कोशिश करता रहा अपने जीवन में कि कुछ बनने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो बात जो मेरे पिता ने मुझे कहा, राइट, उस समय जब मैं 9 साल का था होगा, और हम जानते हैं कि आज तक हमें याद है कि वो चाहता था कि एक अच्छा सलाह मुझे दिया ना, उन्होंने मुझे विचार दिया है कि ना कि हम कुछ करें, अपनी दुनिया में कुछ कर दिखाएं, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि वो एडवाइस देता है, क्योंकि वो शायद ये कहता होगा, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं कि आई बीन देयर, आई डन दैट, एंड आई गॉट माई रेपुटेशन, आई गॉट माई प्राइज। मैं सब कुछ कर चुका हूँ और इस जगह पर मैं आ पहुँचा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम देखता है कि ना हमारे जो पिता हैं, अच्छे पिता जो है, वो अपने बच्चों को अच्छा सलाह देता है और उनको पैरवी करता है। उनको अगर वो मामले में फंस जाते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए, समस्या पड़ जाते हैं उनको हल करने के लिए वो लोग आन खड़ा होता है, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि वो हमारे एडवाइज़र हैं, एडवोकेट है, जो पैरवी करता है, वो हमारे लड़ेगा। अगर कोई हमारे विरुद्ध में आता है, अगर हमारा गलती नहीं है, तो वो हमारे बगल से होकर खड़ा होगा और जो द्रोही है उसका सामना करेगा, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम जानते हैं कि पिता जो है, फादर वर्ड, F stands for the foundation. You know, fathers are the foundation of our family, and A is they give us advice and they become our advocate. Praise the Lord. तीसरा जो शब्द है, third word is T. T stands for teacher or thoughtful advice or insights. तो हम जानते हैं कि तीसरा बात जो हम लोग देखता है कि हमारे जो अच्छे पिता है एक अच्छा टीचर बनता है। वो हमें शिक्षा देगा, ज्ञान देगा और हमें अच्छे गहरा विचार देगा, राइट। और ही विल टीच अस थ्रू हिज एक्सपीरियंस। वो अपने अनुभव से हमें सिखाता है, प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा है वो अपने बच्चों को देता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ हुआ हादसा, उससे वो सीखा है और वो चाहता है पास ऑन करने के लिए, राइट। और फादर्स, अ गुड फादर विल टीच अस व्हाट ही हैज गॉन थ्रू इन हिज लाइफ एंड द एक्सपीरियंस ही हैज एंड टीच एवरीथिंग ही नोस। जो कुछ वो सीखा है ना, वो यू नो हमें वो सिखाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ही विल होल्ड नथिंग बैक, राइट, एवरीथिंग इन हिज बुक, praise the Lord, hallelujah. All right, how when we are little, he used to hold our hands ना, जब हम छोटे थे हमारे हाथ पकड़ के चलाता था। और हम जानते हैं कि जब बड़े सयान हो जाते हैं और शादीशुदा हो जाते हैं तो भी हमें वो सलाह देता है किस तरह से अपने परिवार को हम चलाएं और किस तरह से अपने बच्चों को देख रेख करें, praise the Lord। और हम जानते हैं कि वो हमें परमेश्वर का जो नियम है उसको सिखाता है, राइट। और good fathers, they will teach morals to their children. Teach the word of God. The word
that he has learned the principles of life. हम जानते हैं कि जो हमारे ज़िंदगी के सिद्धांत है उसको सिखाता है, और हम जानते हैं कि मेरा जो पिता था वो अपने काफ़ी उम्र में 50 से ऊपर हो गया था. वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था. My father, when he was about 50 plus, and he accepted the Lord, but still he was learning every day, and he used to teach others, and he used to sing songs, and he used to learn from others, and he used to give advice to us, and whatever he learned he used to pass it on to his children and his grandchildren. Praise the Lord. तो इसी तरह से हम भी जो कुछ सीखते हैं अपने बच्चों को देते हैं और अपने जो नाती पोतों को सिखाते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. तो इस तरह से हम जानते हैं कि एवरी ग्रैंडफादर और फादर नीड्स टू बी अ टीचर. एक बुजुर्ग व्यक्ति है, राइट, उसको ज़रूरत है कि कुछ शिक्षा अपने बच्चों को, अपने परिवार को ज़रूर सिखाएं. जानते हैं कि आज के बच्चे शायद नहीं सीखना चाहते हैं ना. टुडेज चिल्ड्रन, दे माइट नॉट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू सिट एंड लिसन व्हाट यू वांट टू से, बट they need to know what you have to say. हम जानते हैं कि बच्चे शायद शरारती आजकल नहीं सुनना चाहते हैं, बट they do listen, right? कभी कभी बोलते हैं तो वो लोग सुनते ज़रूर हैं. शायद उनका नज़र हम पर नहीं होगा. तो हम जानते हैं कि we need to teach them. Praise them. My father used to tell stories, right? हम जानते हैं कहानी को बताता था और बैठा कर. हम जानते हैं कि ताकि हमारा जो ज्ञान है वो और बढ़ सके. Praise the Lord. Okay. तो हम जानते हैं कि चौथा जो शब्द है, the fourth thing is father stands for foundation. F stands for foundation, the best word of the father word. और दूसरा है A stands for advice, and T stands for teacher, and H stands for good father is a hardworking. No, he will be helpful, he will be healthy. He has the headship of the family. तो हम देखता है कि एक पिता जो अच्छा पिता है वो मेहनत करने वाला होता है, राइट. वो मददगार होता है, वो अपने तंदुरुस्ती के विषय में सोचता है. प्रेज द लॉर्ड. और वो अपने जगह बना के रखता है अपने घर में. प्रेज द लॉर्ड. हम देखता है कि हर एक पिता उनका परम कर्तव्य होता है कि अपने परिवार को देख रेख करे, उनको प्रोवाइड करे, उनके ज़रूरत जो है उसको पूरा करे. प्रेज द लॉर्ड. अ गुड फादर इज अ प्रोवाइडर. He wants to see that every member of the family is being provided. Praise the Lord. He will go through any length to provide for the children. And तुमने देखता है कि हर एक जो अच्छे बाप है वो हर एक घर का जो भी जरूरत है उसको पूरा करना चाहेगा. Praise the Lord. तुम जानते हैं कि वो पिता जो है, अच्छा पिता, वो हर समय ये सोचेगा कि जो स्थिति में मैं होकर गया, जो हार्डशिप में मैं गया, जो मुसीबत होकर काट कर झेल कर हम यहाँ तक पहुँचे, मैं नहीं चाहता हूँ ये मुसीबत हमारे बच्चों को होए. तो इसीलिए वो चाहता है कि उनका जो बच्चे हैं वो कुछ और अच्छे दर्जे पे जाएं. Praise the Lord. Every good father will always see that what situation he went through. He doesn't want his children to go through the situation. Right? तुम जानते हैं कि he will work hard and he will say that no mission is impossible. Right? He will see that things are done, and he wants to be a hard working, and he will every time he will have a new project. ना हर समय उसके पास कुछ ना कुछ नया कार्य होगा करने के लिए. Praise the Lord. So hard working father is a good father. Praise the Lord. Hallelujah. And the children will respect him. हम एक वचन को पढ़ेंगे. ये हमें मिलता है John chapter 5 verse 17 में. John chapter 5 verse 17 यहाँ पर कहता है कि Praise the Lord. Hallelujah. But he answered them, my father is working until now and I myself am working. Praise. हिंदी में कहता है, इस पर ईश्वर ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ. Praise the Lord. So our Father in heaven is working, Jesus said, and I am working too. तो हम जानते हैं कि आज
हमें भी इस दुनिया में भेजा गया है और दुनिया में परमेश्वर ने में रखा है कुछ काम करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, मेहनत करने के लिए. एंड एवरी फादर नीड्स टू नो दिस, प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी टू गॉड. ओके, हम लोग आज देखेंगे वर्ड 5. It is E. E stands for encouragement. E stands for enthusiastic. E stands for evangelism or evangelist. Praise the Lord. हम जानते हैं कि पांचवा जो बात है वो है E और E है, हम लोग देखते हैं, ये कहता है कि encouragement. एक हर एक अच्छा पिता है जो a good father will encourage. He will be an encourager and he will have enthusiasm in himself, and he will be an evangelist. So I will just go through this. Praise the Lord. Hallelujah. So let's turn to Thessalonians chapter 5 verse 11. Thessalonia की पुस्तक को देखेंगे, अध्याय Thessalonians chapter 5 verse 11 को हम देखेंगे. ये कहता है, इस कारण एक दूसरों को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो. In English it says, therefore encourage one another and build up one another just as you also are doing. Praise the Lord. Right? Therefore encourage one another. एक दूसरों को उत्साहित करो. जानते हैं हर एक पिता को जरूरत है कि अपने बच्चों को उत्साहित करें, अपने बच्चों को उन्नति के शिखर पर लेकर जाएं, उनको प्रोत्साहन दें. Praise the Lord. We need to encourage our children. We need to build their faith up. Praise the Lord. And they need to run with it, the principles, the knowledge that we impart to them. Praise the Lord. जो ज्ञान बुद्धि हम समझ अपने बच्चों को देते हैं, हम चाहते हैं उसके लेकर वो लोग दुनिया में, संसार में आगे बढ़ें. Praise the Lord. Hallelujah. So encouragement is not that we want to see that our children are they will be the top number one, but we need to encourage them if they are number one. Praise the Lord. But if they are struggling, they are making their way up, right? We need to encourage them. एक समय की बात है, एक पिता था और उसके बच्चे ने अपना एग्जाम करके उसके माँ को लेकर आया, एंड उसके माँ को उतने अच्छे नहीं थे, तो उसके पिता ने उसको डिस्करेज नहीं करना चाहता था. He doesn't want to discourage his child when he came with his exam papers. So he said, son, I want you to do little better. बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम इससे थोड़ा और अच्छा करे अगले एग्जाम में. प्रेज द लॉर्ड. तुम जानते हैं कि हमें यही, दैट इज व्हाट एनकरेजमेंट इज ना, डू लिटिल बेटर नेक्स्ट टाइम. प्रेज द लॉर्ड. तुम जानते हैं कि हमें इसी तरह से एनकरेज करना है हर एक अपने परिवार के सदस्य को कि हम आगे बढ़ें. प्रेज द लॉर्ड. तुम जानते हैं कि हमारे में वो जोश रहे, राइट? We need to have that enthusiasm in our lives so that we can pull all together. Praise the Lord. Hallelujah. And we need to go forward in our family life, in our lives. Praise the Lord. Hallelujah. So we see that every father needs to be an evangelist in our families. हम जानते हैं कि हमारे पिता एक गवाह देने वाला बने, एक नमूना देने वाला बने. और हम जानते हैं कि मेरा पिता भी था, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और हम जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया था उसके बाद में 6 साल बाद उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया. और जब प्रभु ने उसको अंदर जीवन में चंगाई दिया है, छुटकारा दिया, जो उन्होंने करीबन 15-16 साल से वो ढोकर चल रहा था, उसका कोई इलाज नहीं था. और क्या होता है कि वो जब चंगाई पाया तो सबसे कहता है, एक समय एक डॉक्टर हमारे घर आया और वो डॉक्टर को कह रहा था कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह किस तरह उसके जीवन में आया, उसको पाप क्षमा किया है और उसको सही रास्ता को दिखाया है, उसको लेने से हम नरक में नहीं स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गया स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए. और मेरी माँ आड़ में से, घर के पल्ले के आड़ में से कहती है कि चुप रहो, नहीं करो, वो डॉक्टर है ना.
और अपना जुबान बंद कर रखो ना। तो क्या होता है कि जब डॉक्टर चला गया तो मेरे माँ ने कहा कि तुम क्या कह रहे थे ना, तुम क्यों इस तरह से उसको ना अपने बारे में, अपने विश्वास के बारे में, अपने धर्म के बारे में उसको बताते, अपने ना यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बारे में बताते, वो डॉक्टर है, ये है, वो है। तो मेरे पिता ने कहा कि अगर डॉक्टर है तो अपने लिए होगा, और मेरे जीवन में जो यीशु मसीह किया है उसको हमें बताना ज़रूरी है ना। एंड my mother wanted to quiet him down, but he still, keeps on witnessing to this doctor. And later on, when the doctor went away, and my father said, "Why you are saying me to keep quiet?" He said, "Oh," my mother said, "He's a doctor, he's a well-educated, he's this and that." My father said, "What? Why doctor? He needs to know the Lord as well." उसको भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना ज़रूरी है। Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. So हम जानते हैं कि मेरा पिता कोई भी हमारे घर आता था, सभी से वो यीशु मसीह के विषय में बताता था, और वो कहानी को बार बार दोहराता था। Praise the Lord. Hallelujah. तो इस तरह से हम जानते हैं कि we all need to be, sharing of the gospel. We need to be evangelist in our own sight. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, अंत में the last sixth word in father is R. And a good father is a reliable father. A good father is a respectable father. A good father is a responsible father. Praise the Lord. And really is great father. Praise the Lord. Hallelujah. तो हम देखता है कि R stands for reliable, और वो भरोसेमंद होगा। एक पिता जो अच्छा पिता है, वो उसके ज़िंदगी, वो उसको हम भरोसा कर सकेंगे। और तो इस तरह से हम देखता है कि एक पिता जो अपने शब्द पर या उसके जो बोली है उस अपने जो शब्द है वो बोलेगा, और उससे वो टलेगा नहीं। इसीलिए धर्मशास्त्र से कहता है कि God our Father is the same yesterday, today and forever. हमारा जो पिता, स्वर्ग का पिता है, वो उसी तरह के कल, आज और इगानो, वो उसी तरह से वो बदलने को नहीं। चलो भैया, तो इस तरह से जानते हैं कि एक अच्छा जो पिता है वो उसको भरोसेमंद है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हम trust कर सकते हैं। We can trust, and we any situation we know that whenever he said a word he will never back down. Praise the Lord. अगर वो शब्द कह देता है तो उससे वो मुकरेगा नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. और दूसरा शब्द मैंने कहा is respectful, right? समाज में उसके नाम है ना। Bible says good name is better than riches. एक अच्छा नाम धन से भी भला है। Praise the Lord. Hallelujah. हम जानते हैं कि हमें ज़रूरत है ना, जब एक बाप बनते हैं तो हम जानते हैं ये सब हमारे बच्चे देखते हैं, हमारे परिवार के लोग देखते हैं कितने रिलायबल हम हैं और कितना रिस्पेक्टफुल हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम जानते हैं कि पिता जो है वो भरोसेमंद होना जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना लव गॉड एज यू लव योर नेबर एज योर सेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि जिस तरह से हम परमेश्वर से हम परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि हम अपने आप को हम जब अपने आप को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि हमें जानना है कि एक अगर पिता है तो हमारे ज़िंदगी में ये जो रिस्पेक्ट है और जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम भली भांति संभाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि वी नीड टू अर्न रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। हम जो पुरुष है, पिता है, वो उनको ज़रूरी है कि वो लोग रिस्पेक्टफुल होए, लोग उसको आदर करें, सम्मान दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखता है कि ना परमेश्वर जो है एक पिता को दर्जा दिया है, और हम जानते हैं कि पिता जो है घर का मुखिया है, और सभी बोझ उस पर है। जिस तरह से मैंने कहा कि नाउ द फादर इज द फाउंडेशन, इज अनसीन, इज अंडर, एंड एवरी वेट इज अपॉन हिम। उसके ऊपर सब बोझ भार है, और एक पिता एक बोझ को अपने ऊपर रोके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं
कि परमेश्वर ऐसे पिताओं को चाहता है। आज हम जानते हैं पिताओं को ज़रूरत है अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। और राइट फादर्स डे जो पिछले सप्ताह था हम लोग अच्छी तरह से मनाए। बहुत सारे लोग राइट पिता के विषय में काफ़ी बातों को सुना है। तो हम जानते हैं कि आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक अच्छा पिता बने। और हम जानते हैं कि इस ज़माने में अभी के समय में जो पिता है, जो पुरुष जन है, उनके ऊपर बहुत सारे बौछार हैं, बहुत सारे समस्या हैं। और हमें ज़रूरत है उनको परमेश्वर के सामने उठाएं। हमें ज़रूरत है उनको उत्साहित करें। हमें ज़रूरत है उनको हम लोग मदद पहुंचाएं ताकि वो लोग अपना फ़र्ज़ जो उसका निभा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। So the father needs to stand tall, he needs to stand firm, and he needs to be a good example in the family. एक अच्छा नमूना, एक अच्छा व्यक्ति बनकर औरों के ज़िंदगी में एक पहचान दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस समय हम सभा को यहाँ पर समाप्त करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे आज हर एक लोगों के लिए कि परमेश्वर आपको छुए। शायद आप आज हमारे वचनों को सुनते होंगे कहीं दुनिया के कोई कोने में से भी। हम आपके लिए दुआ करेंगे। मे बी यू आर लिसनिंग फ्रॉम एनी वे फ्रॉम द वर्ल्ड, एनी प्लेस फ्रॉम द वर्ल्ड, बट we would like to pray for you, and maybe you don't know about the Lord, and I will pray that God may touch your heart, your mind, that you will accept him as your personal savior। आज हम प्रार्थना करेंगे और दुआ करते हैं कि अगर यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया, आज स्वीकार करें उसको, ताकि आपके जीवन में एक आशा आ जाए, एक प्रॉमिस परमेश्वर का आ जाए, ताकि आप उस वादे पर खड़े हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर जो वादा किया वो आपके जीवन में पूरा हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। लेट्स ऑल प्रे। हम लोग साथ प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आज हर एक पुरुषों को आपके सामने उठाते हैं, हर एक इंसान को आपके सामने उठाते हैं, हर एक माँ बहनों को, जितने भी दुनिया के लोग आपके सामने उठाते हैं परमेश्वर। जितने लोग आज हमारे इस माध्यम से परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं उनके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। उनके ऊपर आपका हाथ लग जाए, छू दे उनको मेरे परमेश्वर। टच देम माय लॉर्ड, दोज हु आर listening to me, oh mighty God, I pray that you heal them if they need healing. I pray that save them if they need saving. Oh Lord God, I pray deliver them if they need deliverance. प्रभु जी दुआ करते हैं अगर उनके जिंदगी में कोई भी तरह की परेशानी है सब दूर जाए मेरे परमेश्वर, आपके आशीष के भागी वो लोग बन सके। प्रभु धन्यवाद। ये मेरे परमेश्वर धन्य कहते हैं आज आपके दया अनुग्रह के लिए। Father God, I commit each and every one of us in your mighty hand. Lead us and guide us. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Praise the Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. God bless you. प्रभु सबको आशीष दे और शायद हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you and have a good day. Amen. मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा।